Good morning, students. So now it's time to start another new chapter. Chapter number 17, The Revolt of 1857. I mean, now we have three chapters remaining 17, 18, 19, in which we will going to study about how India became free from the rule of Britishers. Okay, so first of all, in first chapter we will see, in this chapter we will see how Britishers came to India, ruled on India. Then after we will see how our freedom fighters gave their efforts to make India free, and the next chapter is also concerned about the freedom fighters. So let's start. So students, first of all, if we will talk about the history of India, then the history of India was very rich. India was among the, you can say, it has a rich background. India was famous for spices, pearls, silk, गोल्ड. ओके, इंडिया में ये सारी चीज़ें बहुत ही फेमस थी और इंडिया इन सब चीज़ों को फॉरेन कंट्रीज़ में बेचता था बिकॉज उनके पास ये सब चीज़ें नहीं हुआ करती थी. सो दे डिपेंड ऑन इंडिया एट दैट टाइम फॉर दिस टाइप ऑफ थिंग्स लाइक स्पाइसेस, पर्ल्स, सिल्क एंड गोल्ड. So they found that India has all such type of wealth. So, and India was famous for all these things. It was a huge demand in foreign countries, in British and every other countries of these things. Now what happened in 1948, a Portuguese explorer, पोर्टुगीज का एक खोजकर्ता था जिनका नाम था वास्को दी गामा, found the route of India. Okay, he found the route Portugal to India. So first of all, Vasco da Gama came and reached to Calicut. He took the permission from the Portuguese ruler at that time to trade with India. Okay, मतलब कि वास्को दी गामा इंडिया आया और उसने जो भी कैलिकट में उस टाइम जो भी राजा था उससे परमिशन ली इंडिया से व्यापार करने के लिए. ठीक है, इंडिया के साथ इंडिया से चीज़ें ले जाने के लिए, मतलब कि वो ट्रेडिंग करने के लिए इंडिया आया. ओके, ही फर्स्ट ऑफ ऑल gradually what happened, the Portuguese established political relationship, or you can say political power over the other parts of the India like Calicut, Goa. Okay, उन्होंने धीरे धीरे अपना पॉलिटिकल पावर भी बढ़ाना शुरू कर दिया. वो क्या करने आए थे इंडिया में? दे स्टार्टेड डूइंग ट्रेडिंग. वो उन्होंने ट्रेडिंग शुरू किया, उसके साथ साथ में दे स्टार्टेड एस्टेब्लिशिंग पॉलिटिकल पावर्स in Calicut, Goa, Diu and Daman. Soon, rest other parts of the world like France, America, all other parts, okay, Europe, they also knew about the arrival of Portuguese people to India. तो उनको भी पता चला कि नहीं भाई पोर्टुगीज लोग यहाँ आ रहे हैं और उन्होंने इंडिया के साथ अपना व्यापार शुरू किया है. सो दे ऑल्सो स्टार्टेड कमिंग टू इंडिया. हु आर स्टार्टेड कमिंग टू इंडिया? द डच, यू कैन से द डच, द फ्रेंच and the British traders also came to India. In the year 1600, okay, now keep in your mind these things. In the year 1600, a group of 100 merchants, okay, a group of 100 merchants from London took the permission of Queen Elizabeth I. Okay, she was the Queen of London, so they took the permission of Queen Elizabeth I and started to form the British ईस्ट इंडिया कंपनी. उन्होंने सबसे पहले वहाँ से वो लोग आए ब्रिटिशर्स और उन्होंने इंडिया में एक अपनी कंपनी डालने का उन्होंने अपनी क्वीन से परमिशन मांगा एंड दे स्टार्टेड एस्टेब्लिश्ड देयर कंपनी दैट इज कॉल्ड ईस्ट इंडिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. ओके, द कंपनी also received the permission
फ्रॉम इंडिया, अब आपको इंडिया में कोई कंपनी डालनी है तो आपको इंडिया से भी तो परमिशन लेनी पड़ेगी. सो दे took the permission from the to trade with India from the Mughal emperor Jahangir at that time. Okay, so they took the permission from the Mughal emperor Jahangir and they established the East India Company. They set up, now they started trading with this East India Company. Okay, उन्होंने अपना शुरू कर दिया. They started making big godowns. उन्होंने अपने बड़े बड़े गोडाउन्स बनाने शुरू किए. कहाँ कहाँ? तो सूरत, बॉम्बे, देन सूरत, बॉम्बे, मद्रास. ओके, यहाँ पे उन्होंने धीरे धीरे अपने गोडाउन्स बनाना शुरू कर दिया. Later they started establishing, also set up that trading company. And अब क्या हुआ कि सेम इसी तरीके से जो फ्रेंच पीपल इंडिया में आए थे उन्होंने भी अपना शुरू किया कंपनी बनाना एंड ऑल. सो द फ्रेंच पीपल ऑल्सो सेट अप देयर गोडाउन्स एट, they also established their centers in Chandanagar, Bengal, I mean बंगाल, वेस्ट बंगाल एंड पौंडीचेरी. वहाँ पे फ्रेंच लोगों ने अपने गोडाउन्स बनाए, अपने सेंटर्स बनाए, जैसे कि ब्रिटिशर्स ने अपने सेंटर्स बनाए सूरत, बॉम्बे, मद्रास, और उन्होंने एक ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई. नाउ व्हाट हैपेंड, द ब्रिटिशर्स वर जेलस ऑफ दिस फ्रेंच पीपल. उनको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि फ्रेंच लोग भी यहाँ आ गए और उन्होंने अपना इंडिया में अपना काम शुरू कर दिया एंड ऑल. सो द ब्रिटिशर्स डिड नॉट लाइक ऑल दिस. So they fought with the French and defeated them. Okay, उन्होंने उनको हरा दिया. In the beginning, the Britishers were interested. Okay, उन्होंने हरा दिया तो वो लोग चले गए. अब शुरू में तो ब्रिटिशर्स यहाँ किस लिए आए थे? वाई दे वर कमिंग? दे वर कमिंग टू ट्रेड. यहाँ पे इंडिया से व्यापार करने के लिए आए थे. बट सून दे स्टार्टेड मेकिंग, बिल्डिंग फोर्ट. वो यहाँ पे अपने किले बनाने लगे. बिकॉज इन द ओल्डन टाइम्स जब किंग्स एंड क्वींस होते थे तो पैलेसेस होते थे, फोर्ट्स होते थे. सो दे स्टार्टेड मेकिंग देयर फोर्ट्स. They started establishing their own armies. Okay, why they have established all these things? In the name of protecting the factories. जो उन्होंने फैक्ट्रीज डाली थी उनको प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने अपनी आर्मी यहाँ ला के रख दी और अपनी आर्मी डेवलप करने लगे धीरे धीरे. जो अपने इंडियन सोल्जर्स थे उनको ही आर्मी में, उनकी आर्मी में लेने लगे. एंड दे स्टार्टेड मेकिंग फोर्ट्स इन द नेम ऑफ कि नहीं हमारी जो कंपनी है उसको सुरक्षा चाहिए, तो उन्होंने किले बनाना शुरू कर दिया. So soon they started making all their properties and money in India. So in such a way the Britishers arrived into India